Okay, uh, let us start with the sums on the theory which we have done in the previous video. We are going to start with the very easy sum. It is a 2 by 2 matrix, so won't be much difficult to solve. And we start with this. So how it is expected to be written in boards, I'm going to write in that manner right now, and then slowly we can use our shortcuts and we can use the techniques by which we can write the solution faster, but that will be applicable only in MCQs. Okay, now what we have to do here is we want adjoint of A for A, and then we are going to find out A inverse if it exists. Now what does this mean? That determinant should be non-zero, it should be non-singular, right? Now why is that crucial, why is that important? We'll come across that, but first we are going to find out adjoint of A, and adjoint of A find करने के लिए cofactors चाहिए, right? So we are going to have elements. Okay, elements will be A ij, then we are going to have minors will be M ij, then we are going to have cofactors. Okay, cofactors will be capital Aij. Okay, so we have elements, we have minors, and we are going to have cofactors. Then we are going to form a cofactor matrix. Okay, so the first element A11 is 1. Minor यहाँ पे find करना बहुत easy है, because when we say I want to eliminate first row first column, so first row or first column eliminate करने के बाद we are left out only with 4. So minor of first row first column is 4, and minor एक बार हम लोग को 4 मिल गया. Then we want cofactor. Cofactor में sign change नहीं होगा because the sum is even. 1 plus 1 we are going to get it as even. तो sign change नहीं होगा. So बहुत easy है, फटाफट हो जाएगा. Then we have first row second column. First row second column element is 2. And after eliminating first row second column, we are left out only with one element, that is 3. So first row second column is 3. Cofactor में yes sign change हो जाएगा. We are going to get -3. Then we have second row first column. Second row first column element is 3. Second row first column को eliminate करेंगे तो हम लोग को minor मिलेगा. Second row first column का minor जो है वो 2 रहेगा, और हम लोग के पास cofactor इसका जो है वो -2 मिलेगा. Okay, then we have second row second column. Second row second column A22. Second row second column A22. Second row second column element is 4. Eliminate that, we get minor of second row second column. Second row second column का minor जो है आप उसको eliminate करने के बाद 1 मिलेगा, और second row second column का cofactor भी 1 रहेगा. Okay, so that is how it is. So cofactor matrix मिलेगा पहले. यहाँ पे डायरेक्ट है, साइन चेंज जो है वो ये दो में ही होगा, बाकी जो है वो दो में साइन चेंज नहीं होने वाला है ऑब्वियसली. कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा पहले हम लोग को, एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स इज वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 आएगा, फिर -3 आएगा. ये जो एलिमेंट्स है उसको रिप्लेस कर देना है. स्मॉल लेटर्स ए को रिप्लेस कर देना है, कैपिटल लेटर्स वाले जो एलिमेंट्स है, कैपिटल ए वाले जो नंबर्स है उसको फिलअप करना है. फर्स्ट एलिमेंट 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू हैव -2, and then we are going to have 1. So we are going to change the elements and we are going to replace the elements by cofactor. Order same ही रहेगा. Okay, and the last thing is हम लोग को adjoint find करना है. Adjoint find करने के लिए we have to just take the transpose of the matrix which we have got here.
सो एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग को ट्रांसपोज लेना होगा. एडजॉइंट फाइंड करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स विच वी हैव गॉट हियर. सो फर्स्ट रो will become first column, 4 minus 3 आ जाएगा यहाँ पे. Second row will become second column. First row will become first column. First row will become first column. Second row will become second column. That is minor. That is adjoint matrix. Cofactor matrix का transpose. Okay. So this is how it is expected the solution to be written in the paper. ये हो गया adjoint आपका. Okay. Now, in the previous video, we did one very important result that A into adjoint of A लो या adjoint of A into A लो. What you're going to get is determinant of A into I. Where determinant of A मतलब a scalar value, एक number है. It's like 2i हो गया या फिर 3i हो गया या फिर 4i हो गया, जो भी डिटर्मिनेंट है उसके हिसाब से वहां पे एक नंबर आ जाएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट अ नंबर. ओके. सो यहाँ पे हम लोग ने एडजॉइंट फाइंड किया हुआ है, राइट. कोफैक्टर्स में से वी फाउंड द एडजॉइंट, वी फाउंड फर्स्ट द कोफैक्टर मैट्रिक्स टू द ट्रांसपोज, वी फाउंड एडजॉइंट. वही एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये रिजल्ट. ओके. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i. अच्छा, यहां पे अगर मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, ध्यान से यू हैव टू सी दिस स्टेप. प्री मल्टीप्लाई किया बाय a इनवर्स. Note this step. We are going to pre-multiply by A inverse. So when we are pre-multiplying by A inverse, we are going to get A inverse into A into adjoint of A is equal to, this is just a number, so उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट इज लाइक 2i. तो 2 को हम लोग साइड में रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग साइड में रखेंगे. इट विल बी लाइक 2 3 4 5 जो भी है उसको साइड में रखेंगे और मैट्रिक्स जो है ए इनवर्स विल गेट मल्टीप्लाइड टू आई. नोट दिस स्टेप अगेन. when I'm pre-multiply by A inverse, when I'm pre-multiplying by A inverse, determinant of A ऐसे भी कुछ काम का मतलब वहाँ पे कुछ बीच में नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन की. you are going to multiply two matrices. okay. now yes, associative law applicable है यहाँ पे. so ये A इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर A इंटू A इनवर्स आप पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो. जब तक आप ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे आपने प्रूव किया है या फिर आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, तब तक आप वो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. ओके. बट मैंने तो ऑर्डर चेंज नहीं किया. ए इंटू एडजॉइंट ये लो, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर वो रिजल्ट को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो. आंसर सेम आने वाला है. Yes, A into BC is same as AB into C. Okay. Now A inverse into A क्या हो जाएगा? I. So you're going to get I into adjoint of A equal to determinant of A, and A inverse into I क्या हो जाएगा? A inverse. So in short, what we are going to get A inverse S 2 by 2 हो या 3 by 3 हो या 4 by 4 हो या 5 by 5 हो, कोई भी टाइप का कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा. सो व्हाट इज A इनवर्स इक्वल टू? A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, where yes, determinant of A can't be 0. So that is the reason why determinant of A can't be 0. That is the reason why determinant of A can't be 0. अगर determinant of A 0 हो गया तो फिर आप किससे डिवाइड करोगे? adjoint को. You can't divide by 0 and therefore A inverse does not exist. Okay.
सो यहाँ पे हम लोग के पास ये फॉर्मूला है इनवर्स का, नया फॉर्मूला, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हम लोग ने, ये जो रिजल्ट है वो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था और उसी के ऊपर हम लोग अभी आगे काम कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट आउट विच इज ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट यहाँ पे मैंने फाइंड करके रखा है, अभी आपको बोला है फाइंड ए इनवर्स, तो वो आप कर सकते हो। एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, 4 - 6 - 2, सिंपल, -2 को एडजॉइंट से डिवाइड करना है। ओके, सो आई डोंट हैव स्पेस हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, इंस्टेड आई विल शो यू द शॉर्टकट विच यू कैन यूज इन सीईटी। ये हो गया, ये मैंने डिराइव कर लिया है एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इनवर्स हियर। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट इनवर्स, बहुत सिंपल है, आगे वो आप खुद कर सकते हो, आई कैन शो इट हियर। काम करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ए इनवर्स इज गोइंग टू बी, yes, A inverse is going to be adjoint of A upon determinant of A. Determinant of A find हम लोग करेंगे यहाँ पे, 4 - 6 is -2, so हम लोग को मिलेगा -half into the matrix, -half into the matrix, and the matrix will be 4 -2 -3 1. 4 - 2 -3 1. So that is what the determinant, that is what we are doing here. We are going to divide the adjoint of A by determinant of A, and that is the formula. Okay, so the formula is A inverse is always adjoint of A upon determinant of A, right? A inverse, we derived here the formula, it is adjoint of A upon I into adjoint of A is adjoint of A upon determinant of A. Okay, yes, so you can take a note here, इसको इधर हम लोग A से डिवाइड कर देंगे तो A इनवर्स हो गया, और इसको यहाँ पे नीचे ले लेंगे। सो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए को डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड हियर आई हैव ऑलरेडी हैड एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें से हमने फाइंड किया था। ए इनवर्स में मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा दिया, 4 - 6 - 2 से डिवाइड कर दिया एंड वी हैव द रिजल्ट। ओके, what I have written at the side is here shortcut for 2x2 matrices. अब शॉर्टकट फॉर 2x2 मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर हम लोग के पास A है, वी कैन रिमेंबर दिस, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ABCD, so if we have a matrix ABCD, right, and I want to find out inverse, so inverse के लिए मुझे पहले adjoint चाहिए, and 2x2 मैट्रिसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। एडजॉइंट हमेशा ऐसे आएगा, डी और ए इंटरचेंज हो जाएगा, डी और ए इंटरचेंज हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज दे फॉल इन द प्लेस वेयर आई प्लस जे इज गोइंग टू बी इवन, तो उसका साइन चेंज नहीं होने वाला है। सो डी और ए इंटरचेंज हो जाएगा एंड -b एंड -c आएगा। डी और ए इंटरचेंज होने वाला है और -b और -c आने वाला है। देखो यहां पे, सो 1 and 4 इंटरचेंज हो जाएगा, सीन दी एडजॉइंट 1 and 4 इंटरचेंज हो गया है, -2 -3 आ जाएगा, -2 -3 आ जाएगा। एडजॉइंट फाइंड करने का ये शॉर्टकट है, वो आप सीटी में अप्लाई कर सकते हो, एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो, थियरी में नहीं। थियरी में ऐसे ही करना पड़ेगा, एडजॉइंट मिलेगा फिर उसको डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट ए इनवर्स। यहां पे भी ए इनवर्स का फॉर्मूला वही है, सो इट विल बी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, आई रिपीट द शॉर्टकट अगेन, एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट है ए और डी को इंटरचेंज करना पड़ेगा एंड नेगेटिव बी नेगेटिव सी, इनको इंटरचेंज नहीं करना है, खाली -1 से मल्टीप्लाई करना है।
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉन जीरो, तो ही तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है. ओके, आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर. This example is clear. 2 by 2 matrix, and you have inverse as adjoint of A upon determinant of A. Okay, let us do it for 3 by 3 now. Okay, same तरीका रहेगा, बस थोड़ा फटाफट हम लोग करते हैं अभी calculations. So we start. पहले हम लोग के पास यहाँ पे रहेगा elements. 3 कॉलम बनाना जरूरी है. एलिमेंट्स माइनस कोफैक्टर्स, राइट. एलिमेंट्स माइनस कोफैक्टर्स. वी आर गोइंग टू गो, यस, अकॉर्डिंग टू HSC हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 है. फिर हम लोग के पास माइनर आएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड करना है. 2 को एलिमिनेट कर देंगे. 2 minus 2 0, राइट. यस, देन वी हैव टू फाइंड आउट कोफैक्टर. कोफैक्टर में साइन चेंज नहीं होने वाला है. वी आर गोइंग टू हैव 0. ओके, first row second column, first row second column 0, first row third column, first row third column -1, second row first column 3, second row second column we are going to have 1, second row third column 2, third row first column we are going to have -1, third row second column we are going to have 1, third row third column we're going to have 2. Okay, minus कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करना है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 + 2 हो जाएगा 8. देन वी हैव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 1 हो जाएगा 4. देन वी हैव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और +1 हो जाएगा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 - 1 3 हो जाएगा. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हम लोग को मिलेगा 2 - 0 दैट इज 2. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 - -1 1 हो जाएगा. 0 - of -1 1 हो जाएगा. Third row second column, third row second column 4 + 3 you're going to get 7. Lastly, third row third column, third row third column we're going to get 2 - 0 that is 2. Appropriately we are going to put the sign changes. Yes, this is -8 हो जाएगा. Then we have first row third column 4 हो जाएगा. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 हो जाएगा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 हो जाएगा. सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 हो जाएगा. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 हो जाएगा. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7 हो जाएगा. सॉरी -7 हो जाएगा ये. एंड देन वी आर हैविंग थर्ड रो थर्ड कॉलम 2. साइन चेंज नहीं होगा. 0 एज इट इज. -8 साइन चेंज नहीं होगा. यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, राइट. लास्ट में. ओके ओके, नाउ वी हैव कोफैक्टर्स. वी आर गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स. वी आर गोइंग टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स. सब हम लोग फाइंड करने वाले हैं और फिर इन्वर्स भी फाइंड करने वाले हैं. बट इन्वर्स के फॉर्मूला में हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए यूज़ करना है और वो डिनोमिनेटर में यूज़ करना है, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू हैव प्लस माइनस प्लस. हम लोग साइन चेंजेस यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव 2 × 2 - 2 विच इज़ 0 -0 प्लस -1 आएगा. -1 के साथ आपको मिलने वाला है 3 + 1. 3 + 1 you're going to get is 4. So yes, determinant is -4 which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Okay. Then we have cofactor
मैट्रिक्स ऑफ ए. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग को मिलने वाला है. पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी, एलिमेंट्स को हटा देंगे. फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे फर्स्ट कोफैक्टर आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट की जगह पे सेकंड कोफैक्टर आ जाएगा. सो ऐसे एलिमेंट्स को हटा देंगे, कोफैक्टर्स को लिख देंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. And once we get the cofactor matrix, we can find out the adjoint of A, the adjoint matrix. Adjoint matrix में कैसा रहेगा? First row will become first column. Transpose लेना है cofactor का. So 0, -8, 4. Then we have -1, 3, -2, 1, -7 and 2. And once we get that, finally what we are going to do is इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स. एंड यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट. सो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो -1/4 एंड यू कैन कॉपी डाउन द एडजॉइंट ऑफ ए. सो अकॉर्डिंग टू दिस 0, -1, 1, -8, 3, -7, 4, -2, 2. Okay, so it's very clear, pretty clear, very easy. It won't be like row transformations, column transformations. बहुत नहीं सोचना पड़ता है, सीधा सीधा हम लोग जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर्मूला करेंगे और आंसर आ जाता है. ओके yes, so yeah, this we have already done before. ऑल्सो इन द फर्स्ट वीडियो हम लोग ने किया हुआ है, हम लोग का होमवर्क का सम था लास्ट टाइम का ये. एंड यहाँ पे ए इनवर्स मुझे ऑलरेडी मालूम है. सो आई राइट डाउन एट द साइड एंड देन विल वेरीफाई कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है. तो आंसर ऐसा है, कुछ कॉस आएगा, साइन आएगा, 0 आएगा, माइनस साइन कॉस 0 है एंड 0, 0, 1 है. ओके, दिस इज व्हाट द आंसर इज. सो वो हम लोग ने रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलर ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, इसलिए हमको मालूम है. नाउ वी आर गोइंग टू डू इट बाय कोफैक्टर्स, एडजॉइंट मेथड. ओके, एडजॉइंट मेथड बोलते हैं उसको. सो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वी कैन फॉरगेट इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट इट बिकॉज सीधा हम लोग ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जंप करते हैं. बट यू हैव टू शो दिस स्टेप and you have to verify whether the matrix is invertible or not. और invertible होने के लिए matrix का जो है वो determinant जो है वो non-zero होना चाहिए. It should be a singular, non-singular matrix. Okay, so we have plus, minus, plus. We have cos theta minus 0, cos theta minus minus हो जाएगा plus, that is sin theta. Then we have sin theta minus 0, we have sin theta plus 0. So cos square theta plus sin square theta determinant जो है इसका 1 आ रहा है. So if determinant is 1, it is not equal to 0 and therefore it is non-singular matrix and the inverse will exist. Now if the inverse exists, we can find inverse by row transformations, column transformations. इस मैट्रिक्स का हम लोग ने इनवर्स रो से भी फाइंड किया हुआ है, कॉलम से भी फाइंड किया हुआ है. और मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी मेथड से इनवर्स फाइंड करो, यू आर गोइंग टू गेट यूनिक वैल्यू ऑलवेज. यूनिक इनवर्स सेम ही मिलेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू क्विकली नाउ डू इट बाय that cofactor method, adjoint method. But इस बार ना we are directly going to find out the inverse. वो elements, minors, cofactors वैसा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेंदी प्रोसेस से नहीं बता रहा हूँ, थियोरेटिकल वो आप HSC में करना. मैं भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ इसका ना. यू डू इट इन HSC, बट CET में आपको ऐसे करना है या फिर थोड़ा शॉर्ट करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस. ओके, सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विथ बाय पुटिंग द माइनर्स. ओके, माइनर्स निकालना शुरू करते हैं. तो कॉस थीटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कॉस थीटा आएगा. उसको हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, माइनर यहाँ पे डालना है.
ओके और माइनर हम लोग ऐसे नहीं डालेंगे. वी गोइंग टू यू रिमेंबर देयर इज अ स्टेप वेयर वी व्हाट वी डू इज वी से कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. तो इसमें हम लोग को रो वाइज जाना है, बट ट्रांसपोज लेने के बाद वो कॉलम वाइज हो जाता है. सो इनवर्स में वो ट्रांसपोज के बाद आता है, एडजॉइंट आता है, कोफैक्टर नहीं आता है या माइनर नहीं आता है, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे, फिर अप्रोप्रिएट साइन डालेंगे, उसको कोफैक्टर बनाएंगे, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज बाद में नहीं लेंगे, पहले से ही लेना शुरू करेंगे. कैसे? इसमें हम लोग रो वाइज जाएंगे और उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉलम वाइज. ओके सो cos थीटा, राइट. लेट अस साइमल्टेनियसली पुट द साइन ऑल्सो. अभी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे आपको माइनर पॉजिटिव रखना है फॉर कोफैक्टर. फिर इसका कोफैक्टर निकालना है, तो पहले माइनर निकालना है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, यू गेट साइन थीटा. साइन थीटा आप यहाँ पे डालो. ओके साइन थीटा यहाँ पे डालो. नाउ दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 + 2 3 नेगेटिव. देन वी कम हियर दिस एलिमेंट ना, इस एलिमेंट का हम लोग पहले माइनर निकालेंगे 0, फिर उसका साइन चेंज करेंगे. अब ये कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4, 1 + 3 4 मतलब पॉजिटिव रहने वाला है. ओके सो अभी पहले फटाफट हम लोग सबका ऐसा कैलकुलेशन कर देते हैं. सो यहाँ पे आएंगे हम लोग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बट इधर हम लोग को जाना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे. इधर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. साइन थीटा को एलिमिनेट करेंगे, आएगा माइनस साइन थीटा माइनस 0, दैट इज माइनस साइन थीटा. दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, साइन चेंज होगा. देन वी एलिमिनेट दिस, cos थीटा माइनस 0 cos थीटा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस आ जाएगा. देन वी हैव सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट कर दो 0. यहां पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जाना है, बट इधर थर्ड रो सेकेंड कॉलम आएगा. ओके यहां पे आपको रो वाइज जाना है, यहां पे आपको कॉलम वाइज जाना है, और साइन चेंजेस करते जाना है कोफैक्टर के लिए. ओके सो माइनर विल बी 0, साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा. ऐसा वाई? बिकॉज इट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 5 ऑड. ओके वापस यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इधर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 0 एलिमिनेट करने के बाद यू हैव 0 एज माइनर. सिंस इट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 4 पॉजिटिव. फिर ये 0 एलिमिनेट करने के बाद अगेन यू हैव 0, बट दिस इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 + 2 5 नेगेटिव. लास्टली ये आ गया 1, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, और ये है भी थर्ड रो थर्ड कॉलम में, 3 + 3 6, तो पॉजिटिव रहेगा. ओके सो पैटर्न बन जाता है एक. अगर आपने नोट किया है तो इट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस प्लस, राइट. फिर यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस. एक पैटर्न बन गया कोफैक्टर्स के लिए. सो इट इज गोइंग टू बी, ये 4 माइनस है, बाकी सब प्लस है. ये कोफैक्टर्स के लिए साइन चेंज है. माइनर आप फाइंड करो, और फिर माइनर का अप्रोप्रिएट साइन चेंज करके ही तो कोफैक्टर आता है ना. तो ये कोफैक्टर के लिए साइंस है. ओके सो माइनर्स फाइंड करना है, और इस पैटर्न में आपका साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन यू आर रेडी विद द आंसर. यू हैव ए इनवर्स एज cos थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1. Okay, so see, it matches with the answer which we have found using row transformations, column transformations. Confuse नहीं होना है. You can practice, and practice करने से ही ये perfection आएगा. Confuse नहीं होना है. And what it is, what the practice is, कि आपको यहाँ पे रो वाइज जाना है, यहाँ पे कॉलम वाइज जाना है, यहाँ पे रो वाइज माइनर्स फाइंड करना है, और यहाँ पे कॉलम वाइज प्लेस करना है with the sign change depending on the row number plus column number.
with the sign change depending on row number plus column number, cofactors बन जाता है वो, and then divide by determinant of A. ये आ गया आपका inverse. Okay, so adjoint of A upon determinant of A is A inverse. Okay, okay. See this sum. X into what will give you that's x का वैल्यू क्या है into this is given in the post multiplied form, right? So अगर हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो I'll have to use column transformations. So let me do it by column transformations first. ना डायरेक्ट तो हम लोग इसको ऐसा नीचे डिवाइड तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, राइट? सो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो बाय क्या करेंगे, ये जो है 1 से हम लोग इसको 0 करेंगे. 1 ऑलरेडी है हम लोग के पास. सो इफ वी हैव 1 इट इज नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़ा हम लोग का कम हो जाता है, इससे हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, राइट? ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है. सो बाय column 3, the change is in column 3, and what is the change? It is column 3 plus column 1. So हम लोग का मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड है, और पोस्ट मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में हम लोग को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना पड़ेगा, राइट? सो आई विल हैव 1 0 2, it is unchanged, column 1 unchanged, column 2 is unchanged, and when we add this ये हो जाएगा 0 2 1. Column 1 is unchanged, column 2 is unchanged. When we add this 7 2 0. Okay, so यहाँ पे जाने के बाद once you reach here you have to go to the center, make it 1. अब वो सेंटर वाला 1 कैसे करेंगे? You have डायरेक्ट डिवीजन वाला ऑप्शन है, बट दैट विल इंट्रोड्यूस फ्रैक्शन ईयर. अगर आपने कॉलम 2 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे -1/3 आ जाएगा. सो दैट विल बी इंट्रोड्यूसिंग फ्रैक्शंस ईयर, राइट? यहाँ पे 1/3 आ जाएगा. सो आई वुड से रादर यू मेक यूज ऑफ कॉलम 3 to make 1 year. So by the changes will be in column 2, and what is the change? It will be column 2 minus column 3. उससे आपकी जो zeros है उसको भी harm नहीं होगा, and what you're going to get here is column 2 minus column 3. So column 2 minus column 3, what you're going to get is 1 0 2 0 2 1 7 2 7 7 2 0. Column 2 minus column 3, we are going to subtract here. 0 minus 0 is 0, 3 minus 2 is 1, 1 minus 1 is 0. Again we have 9 minus 2, 9 minus 7 we have 2, 3 minus 2 we have 1, and minus 1. Okay, so column 2 minus column 3 will give this. Next step, what we are going to do here is, after doing column 2 minus column 3, we have 0 0 1. उसको यूज करके यहाँ पे लेफ्ट में 0 करना है, और फिर हम लोग को यहाँ पे राइट में भी 0 करना है, राइट? सो वो वाला स्टेप जो है वो वी कैन राइट डाउन हियर नाउ बाय ओके बाय column 3, the change will be in column 3, and it will be column 3 minus 2 times column 2. Okay, so we have 1 0 0 unchanged,
we have 0 1 0 unchanged, 1 0 0 1 0 2 we have, 0 1 0 we have, 7 2 7 है यहाँ पे, 2 1 -1 है यहाँ पे, सो ये दोनों अनचेंज रहेगा. कॉलम 3 खाली चेंज होने वाला है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन कॉलम 3 माइनस ट्वाइस कॉलम 2. सो हम लोग को यहाँ पे 0 -0 0 मिलने वाला है. 2 minus 2 we are going to get it as 0. 1 minus 2 times 0, obviously we are going to stay at 1. यहाँ पे changes आएगा obviously. We are going to get 7 minus 4 which is 3, 2 minus 2 which is 0, and 0 plus 2 we are going to get it as 2. Okay, last step, by column 1, the change is going to be in column 1, and the change will be column 1 minus 2 times column 3. Column 1 minus 2 times column 3. So column 1 minus 2 times column 3 will give you 1 0 0 0 1 0 0 0 1. We have 2 1 minus 1, 3 0 2, and then we have column 1 minus twice column 3. 7 minus 6 we are going to get 1, 2 minus 0 we are going to get 2, 7 minus 4 we are going to get it as 3. So x into I is x, and what is the final answer? We have 1 2 3 2 1 0, 3 minus 1 and 2. That is the answer. 1 2 3 2 1 0, 3 minus 1 and 2. So this answer I have achieved by using column transformations, which I have done in the previous class. There is an algorithm which you have to follow. 1 0 0, then center में 1, left right 0, then इधर 1, और फिर उसको हम लोग यूज करेंगे to get the final 0. Okay? Yeah. Same question, I want to do it now using adjoint method. Okay, method of inversion we can also call it as method of inversion. So हम लोग के पास यहाँ पे x जो है उसको मल्टीप्लाई किया है विथ 1 0 minus 1, 0 3 2, 1 0 minus 1, 0 3 2, 2 1 minus 1. X is multiplied to this matrix, and you should have the result as 7 9 0, 2 3 0, 7 minus 1 minus 7. ये हमारा है और हमको फाइंड करना है x. Okay, and I already have the answer with me. So let me write down the answer. The answer which I have found by column transformations, which is 1 2 3 2 1 0, 3 minus 1 2. So that is my answer, 3 minus 1 2. Okay, so that's I found using column transformations. Now let us verify whether the x which we have found is correct by using method of inversion. अब inversion method के लिए क्या होगा, हम लोग ना इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो ये मैट्रिक्स हम लोग का, सो इसको हम लोग इसी के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. पीछे से मल्टीप्लाई करना है, आगे से नहीं, वरना आपको x बीच में आएगा. एंड यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑल्सो अनटिल अनलेस यू नो दैट इट इज कम्यूटेटिव. तो ये वाले मैट्रिक्स के साथ भी ना इनवर्स ही मल्टीप्लाई होगा. राइट, we'll have to find out inverse and post multiply. Okay, अब inverse find करना है हम लोग को, तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है. राइट, सो उसका हम लोग को पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा. सो डिटर्मिनेंट डेल्टा विल बी 1 into -3 minus 2 which is -5 minus 0 आएगा, प्लस -1 into
minus 1 into 0 minus 6. Okay, so what I'm going to get here is minus 5 plus 6 which is equal to 1. So determinant हम लोग को आया है 1, that means inverse exist करता है. So let us quickly find out the inverse of this matrix. Okay, to find out the inverse of this matrix, the formula is it is 1 by determinant of A into adjoint of A. 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, now 1 by determinant of A is 1, तो वो हम लोग ने 1 से डिवाइड कर दिया है. एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया डायरेक्ट करने वाले हम लोग. ओके, सो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एडिट करेंगे, -3 -2 -5, साइन चेंज नहीं होगा. देन वी कम हियर और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 0 -4 दैट इज -4, बट साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आएंगे हम लोग 0 -6 साइन चेंज नहीं होगा. ओके, देन वी कम टू सेकेंड रो, इधर सेकेंड कॉलम फॉलो करना है. 0 एलिमिनेट करेंगे, 0 माइनस ऑफ -1 आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा 1, उसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे. देन वी हैव फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 2 विच इज 1. यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा सिंस इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. देन वी हैव सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -0 विच इज 1, बट वो नेगेटिव हो जाएगा. वी आर गोइंग टू गेट -1. आई रिपीट, पहले हम लोग सेकेंड रो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड कॉलम डालेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको एलिमिनेट करेंगे. 0 माइनस ऑफ -1 विच इज +1, बट साइन चेंज हो जाएगा. इधर साइन चेंज नहीं करना है, -1 + 2 1, और वापस यहाँ पे साइन चेंज हमको करना है, दैट इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 - 0 1, बट साइन चेंज करना है. देन वी आर गोइंग टू हैव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस ऑफ -3 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, साइन चेंज नहीं करना है. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 - 0 2 होगा, साइन चेंज करना है तो -2 लिखेंगे. एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 0, उसको हम लोग 3 ही लिखेंगे. ओके, ये हो गया इनवर्स. सो वी हैव गॉट द इनवर्स, यस. एंड आफ्टर गेटिंग द इनवर्स, इफ आई हैव टू फाइंड आउट x क्या रहेगा, x रहेगा दिस मैट्रिक्स 7 9 0 2 3 0 7 -1 -7 multiplied by the inverse, that is the reciprocal of A, but it will be post multiplied. Reciprocal, ये रहा reciprocal, ये रहा inverse. -5 -1 3 4 1 -2 -6 -1 3. Okay, so when we are multiplying, obviously row wise column wise वगैरह सब हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो फाइंडिंग x नाउ यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन, मल्टीप्लाइंग बाय पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स, ये सब आपको प्रॉपर स्टेप्स में दिखाना है HSC में. ओके, सो व्हाट वी हैव इज फर्स्ट -35 + 36 + 0. -35 + 36 + 0 is 1. Okay, next we have is -7 + 9 0. -7 + 9 is 2. Next we have is 21 - 18 + 0. 21 - 18 is 3. Next we have is -10 + 12 + 0. -10 + 12 is 2. Next we have is -2 + 3 + 0. -2 + 3 is 1. Next we have is 6 - 6 and then again 0. 6 - 6 is also 0. Next we have is -35 - 4. -35 - 4 is -39 + 42 is 3 + 3. Then we have -7 -1 is -8 + 7. So -1 आएगा. 21 + 2 is 23. 23 - 21 is 2.
Okay, I hope you have understood what I have done here is I can't divide by this matrix here straight away, so what I did is I took inverse of this and multiplied. अब inverse से multiply किया है तो यहाँ पे आएगा matrix into its inverse is xi will be सामने वाला matrix ये वाला और इसका इनवर्स. डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है तो इनवर्स से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया और हमको मिल गया x. इनवर्स कैसे फाइंड किया? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है? यहाँ पे रो वाइज, यहाँ पे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, यू गॉट द आंसर. ओके, यस, so that is column. I have done column transformations also and then adjoint ka method also. Last sum, right? We have been given A, we have been given B, they should give us C also. So I have missed the data here, let me get back. So matrix C, which we need to put in place over there, will be 20 minus 10. Matrix C is 20 minus 10, 10, 0. So matrix C दिया होना चाहिए. It should be 20 minus 10, 10 and 0. Okay, so the last sum which we are trying here is A x B is C, find x. Okay, so इस तरफ मैट्रिक्स है 1 3 2 1. Very important sum when you are seeing with respect to concepts here. This is going to be 2 minus 1 0 1. Very important sum with respect to concepts. और यहाँ पे है 20 minus 10 10 and 0. So, इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको. So, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस ही यूज कर लेते हैं फटाफट. 2x2 मैट्रिक्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो अगर हम लोग प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे हैं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, राइट? तब तक इसके तरफ ध्यान नहीं देना है. एसोसिएटिव लॉ, इसको अलग कर दो, राइट? तो हम लोग दिस मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड यू गेट दिस एज आंसर. सो फटाफट हम लोग स्टेप्स लिख देते हैं. पहला स्टेप रहेगा R2 और R2 माइनस 2 R1 रहेगा. सो R2 माइनस 2 R1 करने के बाद व्हाट यू गोइंग टू गेट हियर इज x. ये ऐसे ही रहेगा 2 माइनस 1 0 1. कोई चेंज नहीं आने वाला है इसमें. चेंजेस जो है वो यहाँ पे आएगा. 2 माइनस 2 वी आर गोइंग टू गेट 0. 1 माइनस 6 वी आर गोइंग टू गेट इट एज माइनस 5. यहाँ पे रहेगा 1 एंड 3 एज इट इज. यहाँ पे रहेगा 20 एंड माइनस 10 एज इट इज. बट 10 माइनस 40 हो जाएगा. 10 माइनस 40 इज माइनस 30 एंड 0 प्लस 20 हो जाएगा 20. ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे ऑब्वियसली इधर हम लोग ने 1 लाया, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए, राइट? तो वो 1 लाने के लिए व्हाट शुड बी माय स्टेप? द स्टेप शुड बी R2 डिवाइडेड बाय 5. क्या करना है हम लोग को? R2 को 5 से डिवाइड करना है. R2 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 3 x. इसको अनचेंज रखना है. पोस्ट मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में कुछ नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज. खाली रो ट्रांसफॉर्मेशंस में प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में ही काम होता है. सो आई गेट हियर एज 0 एंड 1. यहाँ पे 20 और माइनस 10 में कोई चेंज नहीं होगा. इधर हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस 5 हम लोग कर रहे हैं. सॉरी, नॉट डिवाइड बाय 5, वी हैव टू डिवाइड बाय माइनस 5. डिवाइड बाय माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा. सो वंस यू गेट दिस, ये हो गया हम लोग का 1 आ गया है यहाँ पे हम लोग के पास. सो वी हैव दिस आइसोलेटेड राइट नाउ, नॉट पेइंग अटेंशन टू इट. सो 1 का 0 हो गया, 1 हो गया. अब ऊपर वाला हम लोग को 0 करना है. तो ऊपर वाला 0 करने के लिए आई हैव टू से बाय R1 माइनस 3 टाइम्स R2. सो R1 माइनस 3 टाइम्स R2 करने पर वी हैव 1 0 0 1.
इंटू एक्स इंटू इधर कुछ नहीं हुआ है 2 माइनस ये एक्स है, मल्टीप्लाई साइन नहीं है, एक्स है। इधर हम लोग ने कुछ भी चेंजेस हम लोग का एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है एज सच। ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी, अगर आप R1 माइनस 3R2 करते हो सो आपको 20 माइनस 18 2 मिलेगा, माइनस 10 प्लस 12 भी आपको 2 मिलेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट 6 राइट एज इट इज, माइनस 4 एज इट इज। ये हो गया आई एक्स विच इज एक्स। सो अभी हम लोग आ गए हैं पोस्ट मल्टीप्लाइड एरिया में। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव मैट्रिक्स विच इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू एक्स। पोस्ट मल्टीप्लाइड टू एक्स अगर हम लोग के पास मैट्रिक्स है तो हम लोग को इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस अ वेरी गुड सम व्हेन इट कम्स टू कंसेप्ट। प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा। सो ये जो 2 है उसको मुझे 1 करना है, आई से कॉलम 1 डिवाइडेड बाय कॉलम 2। सो कॉलम जाएंगे हम लोग, कॉलम वाइज जाएंगे, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1 1 अनचेंज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 एंड माइनस 4, एंड लास्ट स्टेप यहाँ पे ये रहेगा, यू टेक कॉलम 2 और कॉलम 2 में हम लोग ऐड करेंगे सीधा कॉलम 1 को। कॉलम 2 में हम लोग कॉलम 1 को ऐड करने वाले हैं। सो कॉलम 2 में अगर हम लोग कॉलम 1 को ऐड करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू गेट इट एज 1 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 3 3 minus 1. Okay, so ultimately this is I and xi is x, so what is the final answer? X equal to, so final answer x equal to आपके सामने है already, I'm just rewriting it, 1 3 and 3 minus 1, 1 3 3 minus 1, so that is what x is, right? X b a into x into b is c, find x। मैंने फाइंड किया है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस, बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स को आई किया, फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पोस्ट मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स को आई किया। जब प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में कुछ करना है तो रोज ही कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइड में करना है तो कॉलम से ही करना है। ओके, नाउ दिस same sum, keep the answer in mind. We can do it by method of inversion. The same sum we can do it by method of inversion. Keep the answer in mind. Okay, so let us write down the answer here. Answer क्या आया था हम लोग को? आंसर आया था 1 3 3 minus 1. So this same हम लोग इसको सेम सम को हम लोग इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं और सेम आंसर लाने का कोशिश करते हैं। ओके, सो हाउ दैट वर्क्स, राइट? सो हम लोग को बोला गया है कि ax इक्वल्स टू axbc, राइट? सो आप प्री मल्टीप्लाई करो a इनवर्स से, a इनवर्स इंटू axb इज a इनवर्स c, सो a इनवर्स इंटू ai हो गया, ixb इज a इनवर्स c। फिर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो, x ix तो x हो जाएगा, राइट? सो फिर पीछे से b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव a इनवर्स c b इनवर्स, एंड देन अल्टीमेटली ये भी i होने वाला है, सो यू गेट xi इक्वल टू a इनवर्स c b इनवर्स। सो फाइनली x इज a इनवर्स c b इनवर्स। So x is a inverse c b inverse. So let us quickly do that sum. We have the data here. हम लोग के पास a भी है, b भी है, c भी है, और मैंने 2/2 का आपको इनवर्स फाइंड करने बताया है, तो let us do that. क्या है इनवर्स, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? 1 by determinant of a into adjoint of a. शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट यूज करने का टाइम आ गया है। So 1 by determinant of a which is -5, right?
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, हम लोग ये दोनों को स्वैप कर देंगे, पर स्वैप करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 एज इट इज, एंड 3 की जगह पे क्या आएगा -3, 2 की जगह पे क्या आएगा -2, दैट इज इनवर्स ऑफ ए। फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी क्या है 20, सी क्या है 20 -10 10 0। फिर उसको वापस हम लोग को मल्टीप्लाई करना है विद द इनवर्स ऑफ सी, इनवर्स ऑफ सॉरी बी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी का इनवर्स यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करो पहले। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, यू गोइंग टू गेट इट एज 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी करना है हम लोग को। सो एडजॉइंट ऑफ बी करो पहले। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या, ये दोनों स्वैप हो जाएगा 1 और 2, और बाकी दोनों को स्वैपिंग नहीं होगा, नेगेटिव होगा। हम लोग ने शॉर्टकट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो उसका स्वैपिंग नहीं होगा, उसको खाली नेगेटिव करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, इफ यू सी अगेन, नोट दिस इज ए इनवर्स बाय शॉर्टकट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों एलिमेंट्स को हम लोग स्वैप करेंगे, दिस टू एलिमेंट्स विल बी स्वैप्ड एंड इसको नेगेटिव करना है, स्वैपिंग एंड नेगेटिव, राइट। अगेन स्वैपिंग एंड नेगेटिव करना है, राइट। सो हम लोग के पास यहाँ पे b है, हम लोग ने स्वैप किया उसको और बाकी दो एलिमेंट्स को नेगेटिव किया, एंड व्हाट वी गेट इज नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन आंसर आ जाएगा। ये दोनों का -10 है, इसको रो वाइज लेंगे, इसको कॉलम वाइज लेंगे। सो रो वाइज कॉलम वाइज जाने पर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 20 -30 विच इज -10, -10 और ये हो जाएगा 0, -40 + 10 हो जाएगा -30 and 20. Okay, then it will be multiplied to 1 1 0 and 2. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसको -10 को अंदर डाल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 1 3 -2 मल्टीप्लाई 2 1 1 0 and 2, and finally I am going to multiply these two matrices. 1 and 0 we are going to get it as 1, 1 and 2 we are going to get it as 3, 3 and 0 हमको मिलेगा यहाँ पे 3, and last हम लोग को मिलेगा 3 and -4 which is -1. See, that was the value of x, right, which we got in the previous calculation also. 133 -1, that we did by row transformations and column transformations. This method, in this method I have got the same answer, 133 -1, 133 -1, right? So in this method we use row transformations, column transformations, we got the answer. Row transformation, the pre-multiplied matrix; column transformation, the post-multiplied matrix. We got the answer as 133 -1. In this sum, I have not used row transformations, column transformations. I have divided by a. बट यहाँ पे डिवीजन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए के साथ प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स को, यहाँ पे बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स को, एक्स आ गया, दैट बी ए इनवर्स सी बी इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड किया, बी इनवर्स फाइंड किया, शॉर्टकट बताया था मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स का, उससे फिर मैंने मल्टीप्लाई किया सी को बीच में रख के, गॉट द सेम आंसर 133 -1. ओके, so a lot of sums, a lot of examples, a lot of theory concept we have done. You are expected to remember shortcuts in this chapter, so it is easy to solve the MCQs, but HSC में पूरा करके आपको बताना पड़ेगा all the methods. ट्रांसफॉर्मेशन हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, you have to show the entire process. Okay, there are 3 methods to find out the inverse. मैंने एक सम के साथ, that is cos थीटा sin थीटा वाला जो सम था, उसमें मैंने आपको तीनों मेथड्स बताया, रो भी बताया, कॉलम भी बताया, एडजॉइंट भी बताया. ओके, और फिर हम लोग ने उसका एप्लीकेशंस देखा, कैसे हम लोग एक्स अननोन मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन अलाउड नहीं है तो इनवर्स यूज करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.